now I feel it's like a war zone, man. Everyone is fighting with the other channel. I still feel that media is very underpaid in India, media industry especially. Journalism में तो मतलब बिल्कुल ही पैसा नहीं है, मैं bluntly बोल. Even if you complete your 5 or 10 years of experience in the journalism industry, still तुम मतलब उस लेवल पे नहीं हो. What is happiness for me? I always feel that जब मैं यार किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ and I am in the moment, that is happiness for me. Welcome to the AG Search Pod. Here we go. Welcome to the AG Pod. This episode is going to be in English क्योंकि मेरा मन मुझे I really wanted to do it in English because it just reaches a wider audience and I want to connect more with people in India and I think it's हिंदी में करने से और लोगों को पता चलेगा. So इसलिए ये एपिसोड स्पेशल है बट उसके अलावा ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम इंडिया एंड आई कांट बिलीव आई हैव नोन दिस गाय फॉर 9 years. We met in Pune during undergrad days and it's been such a long time. Today we'll cover our life in Pune, then our life now at this moment in this particular era, 2026 coming so close. So he is an adventurer, a true patriot, a creative who enjoys documentary filmmaking. We'll also touch on India's media landscape and filmmaking industry. So please stay tuned, watch till the end, and I hope you enjoy this conversation. Thank you so much, Aman. First of all, thank you so much for such a kind introduction. You're Uh, welcome. yeah, and thank you for hosting and inviting me to your podcast. You're most welcome. यार फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो तुम्हारा बर्थडे है और तुम बर्थडे पे टाइम निकाले सो दैट्स सच अ ब्लेसिंग एंड बट बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन एक सवाल आ रहा है मन में कि तुम कितना कितना टाइम हो गया पुणे से निकले. मतलब पहले तो पुणे में थे तुम. हाँ, मतलब मेरा काफी ऑन एंड ऑफ हुआ है पुणे में. We completed our undergrad from Pune, so I was there for 3 to 4 years. Same with you. Then again, I moved back to hometown. I was doing my defense preparations. Defense preparation होने के बाद 2 साल बाद then I again moved back to Pune for my higher studies. Masters के लिए 2 years of master in Pune, then did 1 year of job in Pune. तो ऐसे on off चलता रहा. But then it's been like a year, more than a year, I guess. I have moved to Hyderabad now, and I'm doing a job over there. So definitely I miss Pune. Uh, and the time we had in Pune was completely different than what I am having right now in Hyderabad or even in Pune. So what do you think has changed, Prathamesh, in your life right now, like compared to Pune days? The biggest change you've had so far. What would it be? I think there are a lot of things that have changed, but one thing that comes to my mind is first thing is that carefree attitude that we had back then while we were in undergrad. I mean, we didn't have the responsibilities back then. Yeah. Now, when I look at myself, I feel that I have to pay my bills. I have to keep grinding. I need to do something so that every month I get my salary. I try to earn little bit more. I'm not sure what are the future plans for me. But then back then when we were in Pune, बहुत easy going life थी यार. मतलब we were figuring out at that time. बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ पुणे आई गेस. मैं भी पहली बार बाहर निकला था घर से. Obviously I was I did my what junior college in Kolhapur, Yeah. but that's still like nearby to my hometown only. So I never felt that I left my home. But when I came to Pune, it was completely new for me. सबसे पहली चीज तो मेरे को बहुत सारे बाहर के स्टेट के लोग देखने मिले. पहले तो तुम मिले, फिर यू नो आवर गैंग, देन वी हैव आकाश, Geram Sabaro. then Geram Shabaro, यार, how can I not mention him?
How can we not mention him on the podcast, bro? Exactly, exactly. But I've not spoken to this guy for a decade now, I think. Right. बहुत टाइम हो Anyway, गया। go on. Yeah. तो यही यार, तो जब पहली बार निकला बाहर पुणे में आया, तो मैंने पहली बार इतने सारा डाइवर्स कल्चर देखा कि Hmm. यार लोग हैं, आते हैं पुणे में, और मेरे लिए थोड़ा कल्चरल शॉक भी था। Hmm. As I am born and brought up in a small town Hmm. called Vita, then coming to a Pune, पूरा अलग ही शिफ्ट था। बट देन आई गेस आई गॉट यूज्ड टू द सिटी लाइफ प्रीटी सून। Hmm. शायद 2-3 महीने में एडजस्ट हो गए थे। देन वी मेट, Hmm. फिर अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, एंड बहुत देन बहुत खप रेस्ट पाई इज है हमने. एग्जैक्टली, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। So what? It's been 6 years since we graduated. या अब तू अपना बैकग्राउंड बता रहा है. तेरा हमेशा से मतलब पहले मैं मीडिया से जाने से पहले तेरा तेरा आर्मी में था स्टार्टिंग से ही मन. और मतलब तू पेट्रियाटिक है, मतलब दिखता है सामने का है. तो तेरा वो स्पार्क कैसे आया पेट्रियाटिज्म के लिए, इंडिया के लिए? यार, बचपन से ना यूनिफॉर्म को लेके बड़ा अट्रैक्शन था। डिफेंस फोर्सेस को लेके बड़ा अट्रैक्शन था, और स्टोरीज पढ़ता था। सो देयर वाज दिस मैगजीन कॉल्ड ब्रेव्स, हम्म. और उसमें ना सारे परमवीर चक्र जितने भी है गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, उनके स्टोरीज आती थी। हम्म. तो बचपन में वो पढ़ा था, एंड आई ऑलवेज फेल्ट यार दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। आई मीन, फर्स्ट द जॉब इज वेरी एडवेंचरस, यू डोंट हैव टू डू द 9 to 5 थिंग। हम्म. सेकंड, यू अर्न रिस्पेक्ट मोर देन मनी। एंड आई हम्म. ऑलवेज थॉट कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई मीन, एक ही लाइफ मिली है, कुछ तो अलग करना है, एंड हम्म. डेफिनेटली यार आर्मी इज द थिंग आई वांट टू गो। स्पोर्ट्स में भी था, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि हम्म. फिजिकल फिटनेस का तो इशू नहीं होना चाहिए। So, so I used to skate. Oh yeah. Yeah. So I did skating till nationals. Then obviously I was playing cricket, volleyball. हम्म. Also I was playing football. हम्म. I played cricket and football till state. Uh, but the sport that I was into was skating only. हम्म. बस यार यही था। फिर तभी मैंने सोचा था कि जाना है डिफेंस फोर्सेस में, तो जाना है। और टेंथ में हम्म. परसेंटेज भी ढंग के आ गए थे, आई वाज नॉट हम्म. एक्सपेक्टिंग। हम्म. तो देन आई थॉट यार आई कैन डेफिनेटली क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस, जितने भी है अपनी सारी हम्म. कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशंस आई विल बी हम्म. एबल टू क्रैक। सो हम्म. आई टुक एडमिशन इन लाइक साइंस। हम्म. I thought of doing science, and हम्म. that was biggest mistake of my life, I feel, because I was not meant for it. था नहीं यार मेरा साइंस की तरफ कोई। टेंथ अगर में तू हम साइंस नहीं लेता तो कौन सा फील्ड चूज करता? यार पता नहीं, अभी फील होता है कि शायद आर्ट्स ही लेता या तो कॉमर्स लेता, क्योंकि नाउ दैट आई एम इनटू मीडिया, आई फील हम्म. आर्ट्स वुड हैव बीन बेटर। हम्म. पर डेफिनेटली यार साइंस तो नहीं लेना चाहिए था मुझे। बट बिफोर वी साइंस। गो इनटू मीडिया टैंजेंट, बिकॉज मीडिया को लेके अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास. और मतलब अभी हम तेरा तेरा करियर मीडिया में स्टार्ट हो चुका है. बट तू अगर चाहता तो तू आर्मी में ही जाता, और मीडिया से तेरा कोई ताल्लुकात नहीं होता उससे. ठीक नहीं है. नहीं। पर अभी इतना सारा चेंज और इतना सारा क्या बोलते हैं झटके लगते हैं ज़िंदगी में, जो तुम सोचते हो वो नहीं होता है. डेफिनेटली। और फिर तुम एक अलग पाथ ही क्रिएट कर लेते हो अपने लिए. राइट। अ, वो टैंजेंट पे हम जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और मेरे को लगता है बहुत लोगों को क्या बोलते हैं सुन के भी ये लगेगा कि भाई अगर तेरे साथ नहीं अच्छा हो रहा है कुछ, तो कुछ नया होने वाला है, तो उसके लिए भी वेट करो. बट मेरा भी जो नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ पुणे को लेके, तेरा सबसे मतलब विविड मेमोरीज और क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट मेमोरीज क्या थी, मतलब जो एकदम वो पल जो तेरी ज़िंदगी बदल दिया. यार, मेरे लिए ना कभी भी बड़े मोमेंट्स मेमोरीज में उतने ज्यादा याद नहीं रहते मुझे, बट छोटी छोटी चीजें हैं ना जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है। हम्म. दैट्स व्हाट आई फील, एंड there were a lot of these small things that happened during my undergrad period, I would say. Uh, First thing is that I met you people. That was हम्म. the biggest life experience, I would say, because uh, you were kind of a outgoing person. You like to travel. आकाश completely different बंदा था।
और गिरमचा बारो से तो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए साथ में था बंदा, तो निकल ही गया वो उसके हम्म बाद। बट देन आई गॉट टू सी वैरायटी ऑफ पीपल, और जिस हिसाब से तू मुझे बताता था कि यार घूमने जाना है तो जा सकते हैं, पैसे उतना मैटर नहीं करता है, बस हम्म यू नीड टू हैव दैट विल टू ट्रैवल। And I always used to feel that everything needs to be planned. You can't just pick your bag and go at any हम्म destination that you want to. But lot of things in those 3 years मेरे को इतना समझ में आया कि बहुत सारी चीजें ना, आई वुड से कि बहुत सारी चीजें वो ब्रेक हुई मेरे दिमाग में ना, वो हम्म शैकल्स ब्रेक हुए कि यार ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट। हम्म हम्म तो डेफिनेटली यार तेरे से मैंने ट्रैवल वाला कीड़ा तो देख लिया था, कि हम्म यार ट्रैवल तो करना है। ऑब्वियसली आई न्यू कि मैं तेरे जितना तो नहीं कर पाऊंगा, बट आई ऑलवेज थॉट ऑफ पुशिंग माई सेल्फ आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हम्म तो पुणे में आई फील यार हमने माइक्रो एडवेंचर्स बहुत किए हैं। रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट दिस कंसेप्ट कॉल्ड माइक्रो एडवेंचर्स, एंड नाउ आई हम्म फील दैट हम जो कर रहे थे दैट वाज हम्म सिमिलर टू दैट ओनली। इट इज हम्म समथिंग लाइक यू you want to go out of your comfort zone, but या you may not have money, time, or हम्म people who can help you हम्म to do that. So what you do is you go for a, what do I say, night ride, you go for हम्म a small trek, हम्म or you want to do something that is adventurous but हम्म you know it is pretty manageable. हम्म तो शायद हम वही कर रहे थे, और तो वो सारी vivid memories है। Then again, living in a apartment with friends, that was the another experience, man. I think it और was super fun, bro. I can't begin to articulate how much fun it was. When like just like in hindsight, things look quite amazing. राइट। उस टाइम पे उतना नहीं, उस टाइम पे मैं भी, बट वही है कि टाइम वेस्ट तो किया। टाइम वेस्ट बहुत किया है, और मेरे को लगता है अगर उस अमेजिंग मोमेंट्स को भी अगर कैप्चर कर लो तो आई थिंक राइट। बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। यार डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे लगता है हमने बहुत सारा कंटेंट ना, क्या बोलते हैं उसको, मिस आउट कर दिया लाइफ का। मेरे को भी आई फील यू ऑन दैट सो मच। एग्जैक्टली, आई थिंक वी शुड हैव जस्ट कीप द कैमरा रोलिंग ड्यूरिंग दोस टाइम, एंड कुछ तो मिलता है यार। अब भी अगर उसको कंटेंट बना के पैकेज करके डाल देते तो भी एक्साइटिंग होता, बट ऑल तेरे सेड को एंड डन आई थिंक तेरे कि को लगता अभी है कि अपना कॉन्फिडेंस और क्या बोलते हैं, हम लोग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते थे चीज़ों को, बहुत राइट? ज्यादा। मतलब मैं तो अपने आप को बोलूंगा ही कि मैं तो बहुत ज्यादा करता था। दैट्स व्हाई आई सेड ना कि तेरे से मिलने के बाद और बाकी लोगों से भी मिलने के बाद ये समझ में आया कि यार ओवर थिंक करके मतलब नहीं है, वी हैव टू टेक हम्म एक्शंस। मतलब अगर तुझे याद होगा, वी इवन स्टार्टेड वेब ट्रैवलिंग। ओ या ऑफ आई कोर्स थिंक आई हमारा रिमेम्बर। यस, तो हमारा पहला यूट्यूब चैनल था, और ठीक है यार, हमने जो भी करा इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर अस कि हम्म लेट्स सी इफ वी कैन डू अ ट्रैवल व्लॉग और नॉट। एंड हम्म आई थिंक किया था हमने अच्छा काम। द ओनली थिंग वी लैक्ड वाज कंसिस्टेंसी। पता नहीं। हम्म बट But that's या, okay. Like, obviously, experiments happen. You can't regret on your experiments. नो, I think what do you learn from it? I think जो कंसिस्टेंसी मिस हो रही थी उस टाइम पे, वो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का। जो कि हम वो अलग ही सब्जेक्ट है, उधर जा सकते हैं। बट अभी अभी पुणे पे ही रहते हैं थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए, ना कि दिन के लिए, दिन नहीं अपने पास उतने। तो तेरे लिए लगता है ट्रैवल मतलब एक तरीके का बहुत ही पिवटल मोमेंट था कि तू ट्रैवलिंग के बारे में सीखा। राइट। आई थिंक मेरे लिए भी था। क्योंकि मैं इतना ट्रैवल थोड़ी ना किया था यार, मतलब पुणे आने के बाद वो फ्रीडम मिली, राइट। वो क्या बोलते हैं, एक वे मिला कि यार अब तो फटे चक देना है, कहीं पे भी चलो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। और थोड़ी बहुत शर्म उस समय मैंने दे बेच खाई थी, और अभी तो और खाए ज़्यादा तो बेच खा रहा हूँ, हाँ। जितनी यार, शर्म बेच खाओगे यार उतना अच्छा होगा ज़िंदगी। बता हमारे पास बेचने के लिए है ही क्या, सही तो बात शर्म ही है। है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मिस? सो आई थिंक वो हमने कवर कर ही लिया है पुणे का, हाँ। बेसिकली वो सारे मोमेंट्स। तो तेरा क्या रीज़न था मीडिया में घुसने? ठीक है, तू आर्मी में घुसना चाहता था, तू साइंस नहीं लेना चाहता था, तेरा बस चले तू आर्ट्स ले लेता,
और तू तब भी आर्मी कर ही लेता, ठीक है, हम्म। बट तू अब मीडिया में अलग ही, मतलब एकदम अलग, पोल्स अपार्ट। राइट। तो ये कैसे हुआ भाई? यार तो ये हुआ जब मैं डिफेंस के लिए प्रेप कर रहा था, नहीं, it was after my 12th. So हम्म। once I completed my 12th, मेरा मार्कशीट आया घर पे, मैंने मार्क्स देखे, एंड आई डोंट नो यार, मतलब इतने लो मार्क्स तो मेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिले थे। वो परसेंटेज देख के तो घर वालों की भी शक्ल उतर गई थी और मेरी तो खत्म ही हो गई थी, मतलब मैं क्या ही बोलूं। तो मतलब तू अ, हमेशा से वो क्या बोलते हैं, आइडियल चाइल्ड रहा है कि हाँ भाई ये हाँ लड़का करेगा? हाँ, मतलब ये था कि आईआईटी तो निकाल ही लेगा, आईआईटी तो बड़ी बात अरे थोड़ी है भाई। इसके लिए। वैसे टाइप का बन गया था और मेरे दिमाग में भी था कि यार कर तो लूंगा, अब तक किया है, अब 11 12 क्या ही डिफरेंट है। बट देन डेफिनेटली आई वाज लिविंग इन यूटोपियन वर्ल्ड मैन, कि हो जाएगा सब कुछ। आफ्टर दैट इवन आई फेल्ट कि यार डिफेंस तो ठीक है, साइड बाय साइड चलता रहेगा, आई नीड टू फाइंड अ वे जहाँ पे एक प्रॉपर डिग्री हो, जॉब हो। व्हाट इफ आई डोंट गेट इनटू द आर्मी, then what option do I have? I don't have a plan B to fall on. So then I decided, yeah, let's explore few fields. I was even looking at the travel and hospitality industry. Then I looked at the media industry, but then I feel, yeah, I always wanted to contribute something for the country, and then I felt that media is something where you can contribute a lot to the country by covering stories, being a good journalist, and definitely अगेन इट वाज अ यूटोपियन वर्ल्ड फॉर मी। आई थॉट कि हो जाएगा, घुस जाऊंगा, स्टोरीज करूंगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा सोसाइटी में, ढंग के जर्नलिस्ट चाहिए। और तब जैसा हाल था मीडिया का, देख के भी लगता था कि यार वी नीड पैट्रियट्स इन द जर्नलिज्म इंडस्ट्री। ये सोच तेरी किसको देख के आई थी? अर्नब गोस्वामी को देख के आई थी? यार अर्नब को देख के तो ये आई थी कि जाके कुछ अच्छा करना है, अर्नब जैसा नहीं करना है। And I always felt that it's not that difficult to be neutral in the journalism world. या। मतलब अभी देखता हो तो बहुत पोलराइज्ड है, आइदर इज फार राइट फार लेफ्ट। तो तब तो लगता था, एंड दैट वाज द ओनली थॉट। या। एंड आई सेड कि यार जाना है मीडिया में, आई हैव टू चूज जर्नलिज्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। एंड अगर एक भी स्टोरी जिंदगी में ऐसी क्रैक कर पाओ कि किसी का भला हो जाए, एंड आई थिंक मतलब हो गया मेरा, जॉब इज डन, हाँ। जॉब इज डन नाउ। एंड अब तो जब हूँ इंडस्ट्री में, आई फील कि यार पूरा उल्टा है, बट देन आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक अबाउट द इंडस्ट्री, आई ऑफ फील कोर्स कि नॉट, या। हाँ। बट आई यू हैप्पी अबाउट योर डिसीजन नाउ? अभी तो मतलब तू आ गया, अब घुस चुका है, अब तो मतलब फुल्ली तू सबमर्ज्ड है उसके अंदर। So now I'm committed to this industry. I don't know if I'm happy or not. I'm still trying to figure out ओ। exactly because I'm still trying to figure out my way, man. I worked with the companies like CNBC, CNN, then worked with the Women's Click Zone. तो वन थिंग दैट आई गॉट, मतलब मेरे को जो समझा उन सब इंडस्ट्री से, ये चीज तो क्लियर थी कि यार इट्स नॉट इजी टू बी इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। कि राइट। यार फेस बन के तुम अगले दिन स्टोरी क्रैक करोगे, इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल या। नीड लॉट ऑफ पेशेंस। तो ये तो था। एंड बस फिर वो देख के नाउ आई फील इट्स लाइक अ वॉर जोन, मैन। एवरीवन इज फाइटिंग विद द अदर चैनल एंड दे जस्ट वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर रेटिंग। तो बस यार यही हाल है। बट आई फील देयर आर फ्यू online portals or media channels or media production houses who are doing their best in terms of journalism and documentary filmmaking। और मुझे लगता है कि यार मुझे भी मिलेगा कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी शायद उनके साथ वर्क करने का, या मैं खुद से इंडिपेंडेंटली कुछ कर पाऊँ। तो दैट विल बी बेटर, लेट्स सी। So you said like a couple of things that I I want to understand better. Like पहली बात तो ये बता, तेरे लिए हैप्पीनेस क्या है भाई? ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डेप्थ में जा सकते हैं हम। राइट बट राइट। बट एक सिंपल सिंपल टर्म्स में तेरे लिए हैप्पीनेस क्या है? यार मैं रिसेंटली जब सोचता हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर मी, आई ऑलवेज फील दैट
जब मैं यार किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ एंड आई एम इन द मोमेंट, दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी. I always felt I am in either in a past or future. I am never in the moment. I always feel that. Even recently, so I was in Spiti. तो मेरे लिए काइंड ऑफ ये था कि यार गेट अवे है, बहुत हेक्टिक हो गया था एक साल जॉब और ये सब कुछ, एंड आई वांटेड टू लिव दैट मोमेंट कि मजे करने हैं, रहना है टाइम में. और मैं कंटिन्यूअसली ये सोच रहा था कि ट्रिप से वापस जाने के बाद क्या क्या करना है, करूँगा. क्या करूंगा. एंड देन आई फेल्ट यार, this is not happiness for me. Even if I am at the like scenic uh, destination of India, still I'm thinking about the future. Then there is no use of traveling, man. I have to be in the moment. और मैं ये try कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें कि जिसमें मैं moment में रहूँ, and then that is happiness for me. आई थिंक यू समड इट वेल. बीइंग प्रेजेंट इज बीइंग हैप्पी. और Right, right. जितना जितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचोगे उतना उतना टेंशन, उतना स्ट्रेस और Eh, ये वो. Exactly. So it's great that you are discovering this consciousness present, being present, and yeah, that's good. Moving on, अभी का जो मीडिया का सिनेरियो है, मतलब मेरे को अभी ज़्यादा पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है. और मैं अगर स्पेसिफिकली पूछूं तो तू तू दोनों साइड से जा सकता है. या तो तू जर्नलिज्म के साइड से बात कर सकता है about the journalism aspect, or you can talk about media as a whole, because media is such so broad. Right, right, I started media because I was fascinated with stories from the right, right. beginning. I just love stories. इसीलिए मैं मीडिया में घुसा. और फिर मेरे को लगा कि चलो यार, स्टोरीज न्यूज़ में ज़्यादा दिखती हैं तो न्यूज़ में घुसने को कोशिश करते हैं, बट अभी तक घुस नहीं पाया मैं न्यूज़ में. तो अभी मैं इधर तेरे सामने बैठा हूँ, अभी भी हम स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो मतलब मेरे लिए प्रेडोमिनेंटली रीज़न था कि मुझे स्टोरीज और कम्युनिकेशन समझना था, इसीलिए मैं मीडिया में घुसा. और तू कोई भी मीडियम यूज़ कर सकता है उसके लिए, वीडियो, ऑडियो, जो भी है. तो अभी इंडिया का मेरे को मीडिया का लैंडस्केप थोड़ा विस्तार में बताओ कि क्या चल रहा है. और तू किस साइड से अभी कवर कर रहा है मोस्टली मीडिया Right, right. को. तो यार हम मतलब अगर याद होगा हम जब अंडरग्रेड में थे तो हमारे लिए मीडिया मतलब ये सारे टीवी चैनल्स थे, जैसे क्या बोलते हैं उसको, आज तक हो गया, या उस टाइम पे जो भी एनडीटीवी हो गया, या जो भी चैनल्स हो गए, स्टार और न्यूज़. अगर स्टार न्यूज़ भी हो गए. और जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहते थे, दे वर लुकिंग एट द प्रोडक्शन हाउसेस लाइक यश या राज या हो गया, या कलर येलो हो गया और ये सब कुछ. पर अभी डाउन द लाइन व्हेन आई लुक बैक एट द मीडिया इंडस्ट्री, मेरे को लगता है यार स्टिल इंडिया में ना मीडिया इंडस्ट्री बहुत मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है. एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है. हायरिंग प्रोसेसेस अभी तक भी सॉर्टेड नहीं है, या कोई एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है. बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द मीडिया डोंट हैव अ मीडिया बैकग्राउंड. मतलब कोई बेसिक मीडिया स्टडीज भी नहीं करी हुई है, मतलब डिप्लोमा कोर्स करके भी नहीं आ रहा है बंदा. किसी ने इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई आर्ट्स या कॉमर्स करके बस आ गया है. तो ये न्यूज़ के लिए तू बोल रहा है अभी, है ना? ये मैं, हाँ, न्यूज के लिए बोल रहा हूँ, हाँ. स्पेशली न्यूज के लिए. हाँ, जितना मैंने अभी तक देखा है न्यूज के लिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग के लिए तो वैसे भी बंदा एक्सपीरियंस से ही सीख रहा है. एग्जैक्टली. मतलब मोस्टली तो उसके लिए कोर्स और तुम करो तो कॉन्टैक्ट्स. कॉन्टैक्ट्स, डेफिनेटली रेफरल्स हो गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए, उसी से जा रहा है. पर जहां तक बात है मीडिया इंडस्ट्री, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, उसमें फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग हो गई, या इवन 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 आई वुड से थोड़े इसके लिए एड सेक्टर भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी हो गई उस चीज के लिए. तो अभी तक उसमें मैं जितना देख रहा हूँ ना, मीडिया लिटरेट, और आई वुड से कि जो लोग मीडिया स्टडीज करके आए हुए हैं, भले अंडरग्रेड करे, मास्टर्स करे या डिप्लोमा करे, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है. एंड दैट इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन इंडिया, बिकॉज देर इज नो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ हायरिंग. अब उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है ना, प्रोडक्ट दैट इज गेटिंग आउट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, इज नॉट अप टू द मार्क. ओके, आई और गेट इट. वो, हाँ, तो वो दिख रहा है. सो नाउ व्हाट जॉब, it's better you have a prior experience, or at least you have studied about it.
And I still feel that media is very underpaid in India, मीडिया इंडस्ट्री स्पेशली जर्नलिज्म में तो मतलब बिल्कुल ही पैसा नहीं है, मैं ब्लंटली बोल दूं तो फ्यू ऑफ फ्यू जायंट्स डू पे यू वेल, जैसे इंटरनेशनल न्यूज में हो गया तो वियन हो गई, या थोड़े हद तक एनडीटीवी हो गई, बट स्टिल लॉट ऑफ फ्रेशर्स आर अंडरपेड. Even if you complete your 5 or 10 years of experience in the journalism industry, still तुम मतलब उस लेवल पे नहीं होंगे कि तुमने जितना टाइम दिया है इस इंडस्ट्री को. एंड आई थिंक दैट इज द ह्यूज प्रॉब्लम राइट नाउ दैट मीडिया इंडस्ट्री इज फेसिंग इन इंडिया. बट ऑल सेड, आई थिंक कि अभी चेंज हो रहा है टाइम, लॉट ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग अप, बट आई स्टिल फील कि करिकुलम स्टैंडर्ड नहीं है अभी भी. Like every institute has its own set of rules, own set of curriculum, and then that is creating a problem when people from different institute are coming to a same organization and working under a same roof, and then they have a different style of working in a media, and then there is a conflict over the working style, over editing method, and etc etc. And that's what I feel that needs to be changed. There needs to be at least a government body who can monitor these media studies, that what needs to be the curriculum for the media studies. मतलब तुम मतलब तुम क्या बताना चाहोगे, अगर क्योंकि यूके तुमने maybe you have done your higher studies, what difference do you feel? It depends, man. Like, I think, first question comes to mind, like you said, ki qualifications, right? There are plenty of people in the media industry, even in the UK, who don't have qualification at all. So it is not just India; it is everywhere. Okay. How do these people come into the industry? I have no idea. Who hires them? I have no idea. But they are making it okay. They are doing their job. अब अच्छा जॉब कर रहे हैं या बुरा जॉब कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे. मेरे हिसाब से यार क्वालिफिकेशन हमने तो कर ली मास्टर्स अब, ठीक है. हम इतने साल घस के और हम इतना क्वालिफाई होके भी अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है और दो बंदे आ रहे हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको जॉब मिल रही है, तो थोड़ा हर्ट होता है. बट उसके अलावा अगर उस बंदे में टैलेंट है और स्किल है, बट हु जजेस दैट, मतलब हु इज जजिंग ऑल ऑफ दिस एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इट. ऑनेस्टली अगर मैं इस टेंजेंट में जाऊं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो खौफ भी है और और गुस्सा भी है. ये क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट पे, जैसे तेरे को फील हो रहा है ना कि रिक्रूटमेंट बहुत घटिया है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. अभी मेरे को कितना, इट्स बिन व्हाट 4 years, almost going to be 4 years. And like technically yes, I got into some jobs that is in media, but not in news or journalism at all, no. And I'm starting my own stuff. I'm doing it independently because the reason is, bro, it's really hard to get a job, first of all. And I don't know how much long it will take me to get a desired job, a job that I really want to do. And until then, I'm just gonna do my own stuff, bro. So just to answer your question, it depends on how you see things. तो हायरिंग प्रोसेस यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, ब्रो. बहुत ही गंदा मार्केट है जॉब मार्केट. घिस जाता है सबका. आई थिंक go on. या मुझे लग रहा है ये चीज ना हर जगह ही आई गेस सिमिलर है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री को या मीडिया इंडस्ट्री को इन जनरल लेके. बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेंज्ड. आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा. बट ब्रो द थिंग इज, दिस इज अ क्रिएटिव इंडस्ट्री, ठीक है. तो क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए ना, या तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, और पहली बात तो लोग समझते नहीं है हाउ मच वर्क गोज इनटू इट, ठीक है. लोगों को लगता है एक वीडियो देख लिया, ठीक है, और हमें भी लगता था, वी सॉ वन वीडियो एंड वी आर लाइक, ओह दिस इज गुड. But you don't know how much money, how much work has gone into making that one video, one news package. It takes a lot of effort. It takes a lot of time, and I don't think people are appreciated enough in media. तो ये problem है. तो there is lack of knowledge, lack of education,
और जहाँ तक क्रिएटिविटी का बात है तो किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाए, जो जो अगर अगर फिल्म मेकिंग में अगर हम बात करें तो फिल्म मेकिंग का तो ऐसा सीन हो गया है कि यार जो लोग शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं और उनको कुछ ब्रेक भी नहीं मिला है। राइट राइट राइट। और जो इंडस्ट्री में घुस चुके हैं वो बड़े बड़े ब्रेक्स मिल रहे हैं उनको, ठीक है। एग्जैक्टली। और इतने बड़े ब्रेक्स मिल रहे हैं कि वो आइलैंड वाइलैंड भी खरीद लेते हैं ठीक है। तो honestly I don't know how do you measure this, how do you राइट measure राइट। this, how do you measure Yeah. creativity? Hmm. um yeah, it's difficult, it's difficult, man. In this I, industry it's difficult, hmm. I mean, I but guess it's worth it. definitely, man, definitely. Even I want to add one more point to this conversation is that Yeah. I even feel that media industry or journalism industry per se has a very toxic culture in itself. I mean, if I have to talk about India, it is definitely toxic. I mean, you don't have any fixed login logout times. You might have to work like continuously for 24 hours, 12 hours. I have seen people doing that. I have done 24-hour shift, and I'm not sure how, yeah. So and I'm not sure how I have done it. But So was there a reason for it? Was there a deadline that you had to? No, so I was covering a cricket match, World Cup चल रहा था, ठीक है. and we were short of employees. I mean, workforce उतना नहीं था. So I had to cover everything. But then in general भी normal shift पे भी I was expected to work somewhere around 12 hours, which doesn't make any sense because you don't get that much payment for what work you are doing. I mean, Of you are course, always yeah, underpaid. yeah. Uh, Second thing is that you don't get any other perks like corporate. I mean, Of even course, yeah. if you look at the corporate industry, पूरा मतलब इंश्योरेंस से लेके तुम्हारा what should I say, कैब सर्विसेज लेके ट्रैवल अलाउंस हो गया या जो भी हो गया, it depends company to company obviously, but still you will get something as a compensation for what you are doing. और उसके साथ आई फील लाइक देर इज नो, मतलब मेरे को ऐसे लगा देर इज नो मेंटल पीस इन द जॉब, मैन. मतलब यू हैव Yeah, टू कीप ऑन वर्किंग फॉर working. 8-9 hours एंड देर इज नो अप्रिसिएशन, हार्डली यू विल गेट अप्रिसिएशन. और उसी के साथ साथ यू माइट नॉट इवन गेट अ क्रेडिट फॉर योर स्टोरी Yeah, इनिशियली. that is hard. Yeah, yeah. एग्जैक्टली. तो बट यार यही तो मतलब प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, अभी तो इंडिया, एज फार एज आई नो एंड एज व्हाट आई कैन गैदर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग, कि यार पहले बात तो पैसे तो मिलते नहीं है, मतलब जितना तुम काम कर रहे हो, ठीक है. कैन यू हियर मी? या 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 या. ओके, योर वीडियो जस्ट वेंट अ लिटिल स्टूपी देयर. ओके. सो यस, या पैसे तो मिलते नहीं है जितना तुम काम कर हम्म. रहे हो. यू ऑब्वियसली ओवरवर्कड, यू अंडरपेड. At the same time you don't know how your career is gonna progress. Like क्या गारंटी है कि तुम 5-10 साल में इधर पहुंच जाओगे? There is no guarantee. There is literally no guarantee, right? राइट. और मतलब यहाँ पे यूके का, if I talk about career progression, okay, there are ways to get into it, but bro, honestly, as you said, it is a bit toxic. Creative industry थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही, क्या बोलते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री कहा जाएगा, बिकॉज कॉर्पोरेट में क्या तेरा एक स्ट्रक्चर है, क्रिएटिव इंडस्ट्री में उतना स्ट्रक्चर नहीं है जितना कॉर्पोरेट में है. तो राइट यहाँ पे राइट राइट. अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, मतलब जो तुम्हारा कॉलीग है उससे ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, और अगर वो विजिबल हुआ और तुम मतलब इतना घिस गए और दिख गया किसी को एक दिन, तो तुम्हारा करियर बन गया. हम्म. और वो दिन का इंतज़ार सब कर रहे हैं ठीक है. तब तक मेहनत करते रहो. डेफिनेटली. तो यार मतलब हाँ, थोड़ा यार डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम द रीज़न आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री इज़ बिकॉज आई लव इट ब्रो. आई लव स्टोरीज, आई लव डूइंग स्टफ लाइक दिस, ठीक है. और मैं आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द फन ऑफ इट. कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो 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 हेलो. Is it better? Is it better? What happened? Turn off and turn it on.
हेलो। Yeah, I can hear you now. Yeah, I think you're something's up with the internet, bro. आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है? चेक कर। Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Hello, 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 hello. Hey, hang on, hang on, hang on. What's up? Hello, can you hear me? हेलो। I can't. Wait, I can't hear you now. फिर Can से you hear me फिर से now? कनेक्ट करूँ सेम लिंक? हाँ कर एक बार. नॉट बीन एबल टू हियर यू। Hang on. Hang on. Let me send you a link again. Stop.